श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। இன்னைக்கு காசி காஞ்சி சங்கமம் இல்லை, தமிழும் தெரிஞ்சவா ஹிந்தி தெரிஞ்சவா இங்கே இருக்கேன். என்னால் முடிஞ்ச அளவு ஹிந்திலையும் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். मैं तमिल में भाषण करूंगा और जो थोड़ा थोड़ा हिंदी में जानता हूँ, दक्षिण भारत हिंदी प्रजा सभा के आशीर्वाद के कारण उसका अनुवाद करने का प्रयत्न करेगा. காசியில் இந்த கங்கக்கரையில் மகான் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பற்றி என் குருவோட சந்நிதியில் பேசுவதற்கு நான் மிகவும் பாக்கியம் பண்ணியிருக்கேன். इस काशी क्षेत्र में पुण्य नदी गंगा माँ के तट पर मेरे परम पूज्य गुरु जी के सन्निधान में दक्षिण भारत के एक महान साहित्यकार संगीतकार श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर के बारे में ये भाषण करने का इस अवसर के लिए मैं खुद को धन्य मानता हूँ. நம் பாரதிய சங்கீதம் முதல்ல மனசாந்திக்காக, அதையும் தாண்டி பகவானிடத்துல பக்தி, அதிலிருந்து மோட்சம் அடைவதற்கு ஒரு சாதனமாக உள்ளது. भारतीय शास्त्रीय संगीत मन की शांति, उसकी द्वारा ईश्वर से भक्ति और उसके द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है. பிரின்சஸ் ஐரினின்னு கிரீஸ் பிரின்சஸ், அவ பெரிய பெரியவாள்கிட்ட போய் எனக்கு மோட்ச மார்க்கத்தை பத்தி கொஞ்சம் உபதேசம் பண்ணணும்னு கேட்டா, அப்ப பெரியவா வந்து நீ பியானோ வாசிப்ப, அதே லயிச்சு வாசி, அதிலிருந்து உனக்கு ஒரு சித்த சுத்தி வரும், அதுல இருந்து உனக்கு மோட்ச மார்க்கத்துல பிரயத்ன ஒரு प्रवृत्ति வரும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணா. आयरिनी नाम का एक राजकुमारी, ग्रीस का राजकुमारी, परम पूज्य महास्वामी श्री चंद्रशेखर सरस्वती जी के से पूछा, मुझे मोक्ष मिलने का उपाय उपदेश कीजिए. महास्वामी जी ने बताया, आप पियानो बहुत अच्छा बजती हो, उसको पूरे एकाग्रता के साथ बजाना, इससे आपको चित्त शुद्धि मिलेगी और इसके द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति हो जाएगी. இது மாதிரி சங்கீதத்தை மகான்கள் ஒரு மோட்ச சாதனமாகவே நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அதுல மகான் முத்துசுவாமி दीक्षितரோட பங்கு மிக மிக பெருசு. इस प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीत के हमारे संतों ने मुक्ति के साधन के रूप में आशीर्वाद दिया है. इस विषय में महान मुत्तुस्वामी दीक्षितर का योगदान बहुत बड़ा है. अद्वैत शास्त्रத்துல நம்ம மடம் அத்வைத மடம், அத்வைத சாஸ்திரத்துல பக்தி மார்க்கத்தை பற்றி கொஞ்சம் முதல்ல பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல நம்ம மடத்தோட ஹிஸ்டரியும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆதிசங்கரர் ஸ்தாபித்த நம்ம காமகோடி பீடம், அதில் பகவத் பாதால் முதல் பீடாதிபதி, தனக்கு பின்பு சுரேஸ்வராச்சாரியால பீடாதிபதியாக நியமித்தார். அவரின் அதிஷ்டானம் காஞ்சிபுரத்துல நம்மோட மடத்துக்குள்ளேயே தான் இருக்கு. இதுக்கு பிரமாணம் என்னன்னா மார்க்கண்டேய புராணம், மார்க்கண்டேய சம்ஹிதைன்னு ஒரு புஸ்தகம், அதுல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. காஞ்சியாம் ஸ்ரீ காமகோட்டிம் கலிமல சமனீம் கல்பயித்வா சுரேஷே ஸ்ரீ வித்யா ராஜ பீட்டார்ச்சன மகித மகாராஜ்ய சம்ராஜ்ய லக்ஷ்மி சம்வேஷ்ய ஆத்மீய சிஷ்யே சகல புவன சம்மோத ஹேதோஹோ மகாத்மா சித்ரூப சுவானுபூதிம் பஜதி பவ மகாம்போதி சந்தாரணாய. இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது காஞ்சியாம் ஸ்ரீ காமகோட்டிம் கலிமல சமனீம் கல்பயித்வா சுரேஷே அப்படின்னு सुरेश्वराचार्य अल्लाह சொல்லியிருக்கா. अद्वैत शास्त्र में भक्ति मार्ग का विषय के बारे में हम पहले देखेंगे. हमारे कांची कामकोटि पीठ भगवान श्री आदिशंकर जी ने स्थापित किया. श्री आदिशंकर जी हमारे पीठ का पहला पीठाधिपति था. गुरु जी का शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य जी हमारे पीठ का दूसरा पीठाधिपति था. सुरेश्वराचार्य जी की समाधि कांचीपुर में हमारी मठ के अंदर ही है. इसका प्रमाण मार्कंडेय संहिता ग्रंथ में अंतर्गत एक श्लोक से हमें मिलता है. இந்த சுரேஸ்வராச்சாரியாலோட சிஷ்யர் சர்வஜாத்ம முனி, அவர் சம்சேவ சாரீரகம்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார். அதுல ஒரு வாக்கியம், ஜீவேஷானோ சிருஜ்யமானம் ஜெகச்ச சுத்தம் பிரம்மம் இது ஆக வேதாந்த வாக்கியம். அதாவது அவித்தியின் சம்பந்தத்தினால் ஞானஸ்வரூபமான பிரம்மம் ஒரு சர்வ சக்தி உள்ளதாக தோற்றமளிக்கிறது. அதான் ஈஸ்வர தத்துவம். அதே மனசோடு சம்பந்தப்படும் போது
இந்த பிரம்மன் ஜீவனாக தோற்றம் படிக்கிறது, அதுதான் ஜீவ தத்துவம். श्री सुरेश्वराचार्य के प्रमुख शिष्य श्री सर्वज्ञात्म मुनि संक्षेप शारीरक नाम के एक ग्रंथ लिखाया। उसी में एक वाक्य जीव ईशानो सृज्यमानम जगच्च शुद्धम ब्रह्म इति आह वेदांत वाक्यम। इसका अर्थ अविद्या के संबंध से शुद्ध ब्रह्म एक सर्वशक्तिमान रूप लेता है, इसे हम ईश्वर मानते हैं। इसी अविद्या से कल्पित हुआ मन के संबंध से शुद्ध ब्रह्म जीव का रूप लेता है। ஜீவன் அவன் தான் எல்லா காரியங்களையும் செய்பவன், கர்த்தா, பலனை அனுபவிப்பவன் போக்தா. இந்த கர்த்தாக்கும் போக்தாக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை அறிகின்றவன் ஞாத்தா. அதனால வேதத்துல அனுமதிக்கப்பட்ட கர்மாக்களை செய்தால் புண்ணியம் கிடைக்கிறது, வேதத்துல நிஷேதமான கர்மாக்களை செய்தால் பாவம் கிடைக்கிறது. இந்த புண்ணிய பாவங்கள்னால் மறுபடி பிறந்து இருக்கிறார். அதுதான் பகவான் ஆதிசங்கரர் பஜகோவிந்தத்தில் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனி ஜட்டரே சயனம் இக சம்சாரே பகுதுஸ்தாரே கிருபையா பாலே பாகி முராரே. அதுலயும் அவர் கடைசியில பகவத் பக்தியை தான் மோட்சத்துக்கு சாதனமா சொல்றார், கிருபையா பாலே பாகி முராரே. ये जीव कुछ कार्य करता है, एक कर्ता मानते हैं, उस कार्य का फल उनको मिलता है भोक्ता। इस कार्य फल संबंध के बारे में जानते हैं ज्ञाता। वेद द्वारा अनुज्ञात कर्म करने से जीव को पुण्य मिलता है, वेद द्वारा निषिद्ध कर्मों को करने से जीव को पाप मिलता है। ये पुण्य पाप कर्मों के कारण जीवन जन्म मरण चक्र में पड़ जाता है। इस विचार को ही भगवान आदिशंकर जी भजगोविंद कविता में प्रकटित करते हैं। इस जन्म मरण चक्र से विमुक्ति होने के लिए भगवान आदिशंकर जी भक्ति मार्ग को ही अनुशंसा करते हैं, कृपया पाले पाही मुरारे. பல கோடி ஜென்மாவில் பண்ண ஒரு புண்ணியத்தினால அந்த ஜீவனுக்கு ஒரு குரு கிடைக்கிறார். அவர் இந்த ஜீவனுக்கு கர்ம மார்க்கம்னா பலத்துல ஆசை வைக்காம கர்மா செய்வது, அதிலிருந்து ஒரு சித்த சுத்தி, அதிலிருந்து பக்தி மார்க்கம், அதாவது ஈஸ்வரனிடம் பக்தி, அதிலிருந்து ஞான மார்க்கம், அதிலிருந்து மோட்சம் கிடைக்கிறது. இதான் படிப்படியா ஒரு முக்தி வரத்துக்கு நம்ம அத்வைத மதத்துல சொன்ன ஒரு प्रक्रिया। कई करोड़ों जन्म मरण चक्र के बाद ये जीव को एक सद्गुरु मिलता है। गुरुजी उस जीव को कर्म मार्ग, फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, इससे जीव को चित्त शुद्धि मिलता है। इसके बाद भक्ति मार्ग, ईश्वर से भक्ति करना, और उसके बाद ज्ञान मार्ग में ले चलते हैं। गुरु की कटाक्ष से उस जीव को मोक्ष मिलता है। இந்த கர்ம மார்க்கத்துக்கும் சரி மோட்ச மார்க்கத்துக்கும் சரி ஈஸ்வர பக்திங்கிறது தேவை. இதை கூடார்த்த தீபிகை என்ற ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட வியாக்கியானத்துல மதுசூதன சரஸ்வதி ஆதிசங்கரோட பரம பக்தர் ஒரு ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கார். சர்வாசு அவஸ்தாசு பகவத் பக்திகி அத்திர உபயுஜ்யதே, பூர்ம பூமௌ கிருதா பக்திகி உத்தராம் பூமிம் ஆனேத், அந்யதா விக்ன பாகுல்யாத் பல சித்திகி சுதுர்லபா. அதாவது ஈஸ்வர பக்தி இல்லை என்றால் கர்ம மார்க்கமும் ஞான மார்க்கமும் இரண்டிலேயும் சித்தி கிடைக்காது. பல சித்திகி சுதுர்லபா அப்படின்னு கூடார்த்த दीपिका मधुसूदन सरस्वती எழுதியிருக்கார். ये कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों के लिए भक्ति मार्ग बहुत आवश्यक है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी आदिशंकर जी का परम भक्त श्री भगवत गीता के लिए गूढ़ार्थ दीपिका नामक एक व्याख्यान किया है। इसे एक श्लोक में सर्वासु अवस्थासु भगवत भक्ति ही अत्र उपयुज्यते, पूर्व भूमौ कृता भक्ति ही उत्तराम भूमिम आनयेत, अन्यथा विघ्न बाहुल्यात फल सिद्धि ही सुदुर्लभा। अर्थात ईश्वर भक्ति बिना कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में सिद्धि नहीं मिलता है, फल सिद्धि सुदुर्लभा. இந்த ஈஸ்வர பக்திக்கு ஒரு அடித்தளமாக ஸ்ரீ வித்யாரண்யர் புராண சாரம் என்ற ஒரு புத்தகத்துல 6 முறைகளை சொல்லியிருக்கார். சைவம் ச வைஷ்ணவம் சாக்தம் சௌரம் விநாயகம் ததா ஸ்காந்தம் ச பக்தி மார்க்கஸ்ய தர்சனானி சடேவகி. சிவன், விஷ்ணு, அம்பாள், சூரியன், மகாகணபதி, சுப்பிரமணியர் இந்த ஷண் மதத்தை நம் ஆதிசங்கரர் ஸ்தாபனம் செய்திருக்கிறார். பல ஸ்லோகங்கள் அதுக்காக எழுதியிருக்கிறார். இந்த தேவதைகளை பற்றி பல கீர்த்தனைகள் ஸ்ரீ தீட்சிதர் அவர்களும் ஏற்றியுள்ளார். அதில் இன்னைக்கு நாம் விக்னேஸ்வரரோட கீர்த்தனைகளை இன்று பார்ப்போம். ये ईश्वर भक्ति के मुख्य षण्मत प्रक्रिया को श्री विद्यारण्य जी ने पुराण सारम नामक पुस्तक में व्याख्या किया है. शिव, विष्णु, देवी, सूर्य, गणपति और सुब्रमण्य ये 6 देवताओं को की प्रार्थना करने का प्रक्रिया श्री आदिशंकर महाराज
अनेक श्लोकों के द्वारा प्रदर्शन किया है। इस प्रकार श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी भी एक 6 देवताओं के बारे में अनेक कीर्तन किया है। उसमें आज हम गणपति जी के कीर्तनों के बारे में देखेंगे। தீட்சிதர் கணபதி பேர்ல பல கீர்த்தனைகள் செய்திருக்கிறார். அதில் இப்போது கச்சேரிகளில் பாடுறது சுமார் 27 कीर्तनेகள். दीक्षितर जी गणपति देवता के बारे में अनेक कीर्तन किया है. उसी में 27 कीर्तन अभी संगीत कार्यक्रमों में गाया जा रहा है. தீட்சிதர் கணபதியை வரத மூர்த்தியாக தான் எப்போது வர்ணிக்கிறார். அதுல முதல்ல ஏகதந்தம் பஜேகம் ஏகாநேக பலப்பிரதம். அதுல ஏக அநேக பலம். ஏக பலம்ங்கிறது மோட்சம், अनेक பலங்கிறது காமியமான ஆசைகள். दीक्षितर जी भगवान गणपति जी को वरद मूर्ति के रूप में वर्णित किया है. ये कीर्तन में बिलहरी राग में हुआ. एकानेक फल प्रदम, एक फल प्रदम मोक्ष को देगा, अनेक फल प्रदम सांसारिक आशाओं को देगा. इस कीर्तन को हमें उनका पल्लवी भारती जी अभी गाएंगे. एकदन्तं भजे हम, एकदन्तं भजे हम, एक अनेक फलप्रदम्. 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 இந்த பிலஹரி ராகத்துல உள்ள கீர்த்தனை ஹாலாஸ்ய கஷேத்திரம், அதாவது மதுரையில் வேகவதி நதிக்கரையில் உள்ள गणपतिயை பற்றி கூறுகிறார். ये राग बिलहरी से हुए कीर्तन में दीक्षितर जी दक्षिण भारत के हालास्य क्षेत्र नाम का मथुरा नगर में वेदवती नदी के तट पर स्थापित गणपति जी का वर्णन किया है. இதுபோல் தெற்கு இந்தியாவில் இருக்கிற பல கணபதி கோயில்களை, அதாவது மதுரை, மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திருநெல்வேலி, திருவனந்தபுரம், தஞ்சாவூர், காஞ்சிபுரம், வைத்தீஸ்வரன் கோவில், இது பற்றி பல விக்னேஸ்வரரை பற்றி பாடியிருக்கிறார். इसी प्रकार दक्षिण भारत के कई जगह में निर्माणित भगवान गणपति जी की विग्रहों के बारे में महान दीक्षितर जी कीर्तन किया है. मथुरा, तिरुवारूर, तिरुची, திருநெல்வேலி, तिरुवनंतपुरम, तंजावुर, कांचीपुरम, वैदीश्वरन कोविल, मयूरम जगह के गणपति जी के मंदिरों को दर्शन करके उनकी मूर्तियों के बारे में कीर्तन किया है. நம் பழக்கத்துல ஷோடச கணபதி வழிபாடு உள்ளது. அமாவாசை முதல் பௌர்ணமி வரை ஒரு நாளும் ஒரு गणपतिயை वழிபட வேண்டும். हमारे धार्मिक परंपरा में 16 गणपति मूर्तियों और उनके पूजा करने का प्रक्रिया शामिल है. अमावास्या तिथि से पूर्णिमा तिथि तक हर एक दिन एक गणपति का पूजा करना है. दीक्षितर जी இந்த ஒவ்வொரு गणपति பெயரிலும் பாட்டு எழுதியிருக்கார். दीक्षितर जी ये 16 गणपतियों के बारे में अलग अलग कीर्तन किया है. இந்த கீர்த்தனைகள்ல விக்னேஸ்வரை मुक्ति तरुम கடவுளாகவே वर्णितिருக்கிறார். ये सभी कीर्तनों में भगवान गणपति को मुक्ति प्रद ईश्वर के रूप में ही वर्णन किया है. पहली कीर्तना श्री मूलाधार चक्र विनायक अमूल्य वर मुक्ति प्रदायक मूल अज्ञान शोक विनायक मूल कंठ मुक्ति प्रदायक. அஜ்ஞானத்தில் வரும் சோகத்தை போக்கி நமக்கு முக்தி கொடுக்கும் கடவுளாக வர்ணித்திருக்கிறார். இந்த ஸ்ரீராக கீர்த்தனையில், ஸ்ரீ மூலாதார என்ற ஸ்ரீராக கீர்த்தனையில்
அந்த முக்தியை விலை மதிக்க முடியாத ஒரு வரமாக கூறுகிறார், अमूल्य वर। ये श्री नाम के राग में हुआ कीर्तन से दीक्षितर जी भगवान गणपति को संसार के दुख से विमोचन करके हमें मुक्ति देने वाला ईश्वर के रूप में वर्णित किया है और इस मुक्ति को अमूल्य वर मानता है। अभी इस कीर्तन का पल्लवी गाएंगे। श्री मूलाधार चक्रविनायक श्री मूलाधार चक्रविनायक श्री मूलाधार चक्रविनायक श्री मूलाधार चक्रविनायक अमूल्य वर प्रदायक अमूल्य वर प्रदायक मूल अज्ञान शोक विनाशक मूल ज्ञान शोक विनाशक मूल ज्ञान शोक विनाशक मूल कंद मुक्ति प्रदायक मूल कंद मुक्ति प्रदायक கௌல ராகத்துல உள்ள ஒரு கிருதி, அதுல பிரகாச கரோ பவ ஜலதி நாவோ மூல பிரகிருதி ஸ்வபாவ சுகதரோ ரவி சகசிர சந்நிபதேகோ கவிஜனனுத மூஷிகவாகோ அவனத தேவதா சமூகோ அவிநாச கைவல்ய தேகோ. இந்த சம்சாரம் என்ற சமுத்திரத்தை தாண்டுவதற்கு ஒரு படகாக உள்ளவரே, பவ ஜலதி நாவோ மோட்சம் தருபவரே, அவிநாச கைவல்ய தேகோ அழிவில்லாத பிரம்ம ஞான स्वरूपமாக உள்ள गणपति அப்படின்னு गणपतिயை वर्णिச்சிருக்கார்। ये गौल नामक राग में हुआ कीर्तन में भी दीक्षितर जी भगवान गणपति जी को ये संसार सागर के पार करने के लिए हमें सहायता करने वाला नाव के रूप में वर्णित किया है और उनको अविनाश कैवल्य देखो, ये ब्रह्म ज्ञान स्वरूप का देख गणपति को इसी प्रकार वर्णन भी किया है। इस कीर्तन को हम गाएंगे। प्रकाश करो प्रकाश करो भव जलदि नावो मूल प्रकृति स्वभावो सुखतरो प्रकाश करो भव जलदि नावो मूल प्रकृति स्वभाव सुखतरो रवि सहस्र सन्निभदेहो कविजननुतमूषिकवाहो रवि सहस्र सन्निभदेहो कविजननुतमूषिकवाहो अवनत देवता समूहो अविनाश कैवल्य देहो रवि सहस्र सन्निभदेहो कविजननुतमूषिकवाहो अवनत देवता समूहो अविनाश कैवल्य देहो श्री महागणपति கணபதிய தீட்சிதர் மூலாதாரத்தில் இருப்பவராக சொல்கிறார்। மூலாதார கஷேத்திரஸ்திதம் யோக சாஸ்திரம் படி
இது முதல் சக்கரம், இதோட மந்திர பீஜம் லம். அதனால்தான் கணபதி அதர்வசீஷ உபநிஷத் ஆரம்பமே ஓம் லம் நமஸ்தே கணபதின்னு ஆரம்பிக்கிறது. இதை ஒரு திரிகோணமாகவும் நம்ம கருதுகிறோம். அதனால அதையும் இந்த கீர்த்தனையில திரிகோண மத்திய கதம், இந்த சக்கரத்துல தான் நம் பூர்வ ஜென்ம வாசனைகள் இருக்கிறது. அதே மாதிரி பிரணவஸ்வரூபமாக ஓம் என்கிற பிரணவம் அது பிரம்மஸ்வரூபம். மகா கணபதியை प्रणवस्वरूपமாக இதுல वर्णिக்கிறார். प्रणवस्वरूप वक्रतुंडम। एक हमसध्वनि राग में हुए कीर्तन में दीक्षितर जी भगवान गणपति को मूलाधार चक्र की देवता और प्रणव शब्द ओम के स्वरूप में होने वाले इस प्रकार वर्णित किया है। उसका चरण अभी गाएंगे। पूरा पुरा कुंभ संभव मुनिवर प्रपूजितं त्रिकोण मध्यगतं। पुरा कुंभ संभव मुनिवर प्रपूजितं त्रिकोण मध्यगतं। मुरारी प्रमुखात्युपसितं मुरारी प्रमुखात्युपसितं मुरारी प्रमुखात्युपसितं। मूलाधार क्षेत्र स्थितं परादिसत्वारि वाकात्मकं प्रणव स्वरूप वक्रतुण्डं। निरतरो निडल चंद्र कड़ा निजवामकर विधृते क्षुरंडं। कराम्बुजपशबीजपूरं कलुषविदूरं भूतारं हरादि गुरुगुहतोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं वातापि गणपतिं भजे। இந்த தீட்சிதர் கீர்த்தனைகளை பாடுகிற வித்வான்கள், வாசிக்கிற வித்வான்கள், அதை கேட்கிற ரசிகர்கள் எல்லோருக்கும் விக்னேஸ்வரர் அருளால் சந்தோஷமான வாழ்க்கையும் மறுபிறவி இல்லாத முக்தியும் கிடைக்க வேண்டும் என்று இந்த காசி கஷேத்திரத்துல இந்த கங்கை கரையில என் குருநாதர் கிட்ட வேண்டிக் கொண்டு என் பேச்சை முடித்துக் கொள்கிறேன்। महान दीक्षितर जी के कीर्तन को गाने वाले विदुषियों और विद्वानों और उनको सुनने वाले रसिकों को श्री महागणपति जी की आशीर्वाद से इस जीवन में सुख और शांति और ये संसार चक्र से मुक्त मिलने के लिए इस काशी क्षेत्र में पुण्य नदी गंगा मां की तट में मेरे परम पूज्य गुरु जी को प्रार्थना करके मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। आस्ते देशिक चरणम निरवति रास्ते त्वदीक्षणे करुणा आस्ते किमपि दुक्तम किमतः परमस्ति जन्म साफल्यम। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे गुरु परंपरा। संगीत और साहित्य दोनों जो विषय है प्रजा का मनोरंजक होता है। जो अच्छे साहित्य है, इधर तुलसी रामायण हो और भी जो भी कविताएं हैं, और संस्कृत भाषा में महाकवि कालिदास जी का और अनेक
साहित्यकारों का जो भी साहित्य है वो भारत का इतिहास हमको बताता है। भारत में जो जीवन पद्धति है, इधर जो भारत के प्रजा का जो आस्था है और बचपन से प्रजा को किस प्रकार से पालन पोषण करते हैं, बुद्धि का विकास हो, मन का विकास कैसे होता है, शरीर का पुष्टि कैसे होता है क्रमशः, वैसे शरीर और बुद्धि और मन को लेकर के जो भी मार्गदर्शन है वो साहित्य से मिलता है। ये भारत का जो साहित्य का ये महत्व है। समग्र विकास ये भारत का अक्षर का तत्व होता है। महाभारत, भागवत, राम कथा, वाल्मीकि रामायण, भर्तृहरि का और सुभाषित रत्न भांडागार, विदुर नीति इत्यादि बहुत है। उसपे साहित्य के द्वारा अच्छे संदेश प्रजा को मिलता है। वैसे ही संगीत भी मुख्य विषय है। पशुर्वेत्ति शिशुर्वेत्ति वेत्ति गान रसम फणी, ऐसे जानवर को भी शांति प्रदान करने का शक्ति संगीत को होता है। संगीत मतलब शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत हो या हिंदुस्तानी संगीत हो, जो भारत का जो विज्ञान है उसके तरफ से प्रजा के लिए अच्छे दिल, अच्छे संकल्प होने के लिए ये संगीत के माध्यम से मन में प्रसन्नता और एकाग्रता ये सब उपलब्ध होता है। आज जो दिन में प्रातः काल 8 बजे से जो शुरू हुआ, मतलब 9 बजे से जो भी शुरू हुआ, अभी भी जो चल रहा है, इस कार्यक्रम का नाम ऐसे किया है मुत्तुस्वामी दीक्षितर का साहित्य। जो मुत्तुस्वामी दीक्षितर जो है वैसे तो तमिलनाडु से है, उनका निवास काशी में हुआ है। काशी में जो एक योगी जी, उनके पास उन्होंने अध्ययन और दीक्षा वगैरह लिया। इधर विश्वनाथ जी के बारे में मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी ने साहित्य रचना, संगीत का जो भी कृति है वो उन्होंने रचना किया है। मुत्तुस्वामी दीक्षितर का जो प्रत्येकता है, विद्यार्थी सब मौन से रहना, हाँ, जो है जो विश्वनाथ जी का वो भक्त थे, विश्वनाथ जी के बारे में उन्होंने कृति जो है संगीत का प्रस्तुति किया है, और राम जी के बारे में भी उन्होंने किया है। जो पाश्चात्य संगीत का भी वो अभिज्ञ थे और हिंदुस्तानी का तो ही। वैसे संगीत का बहुत बड़ा कलाकार एवं उपासक, नवग्रह देवताओं के बारे में उन्होंने कीर्तन किया है, और देवी का नवावरण कीर्तन, भक्ति एवं विभक्ति, विभक्ति का कीर्तन। संगीत में उनका जो संगीत कीर्तन होता है उससे संस्कृत का ज्ञान का भी विकास हमको होगा, और वहाँ का जो तीर्थ स्थल है उसका पूरा जानकारी देते हैं। जैसे इधर कल्याण तीर्थांक इत्यादि का प्रकाशन हुआ उत्तर भारत में, वैसे मुत्तुस्वामी दीक्षितर का जो कृति है उसको सुनते ही उस तीर्थ का जो महात्म्य है वो भी हमको पता चलता है। उसको कला के दृष्टि से, साहित्य के दृष्टि से और देश का चरित्र के दृष्टि से
उपासना का दृष्टि से इस मुत्तुस्वामी दीक्षितर का जो है दृष्टिकोण है वो तो अनेक प्रकार से वो इस देश में कला संस्कृति को पुनरुत्थान के लिए उन्होंने काम किया। तो वैसे तो वो काशी के निवासी है। उनका जो कीर्तन है वो उत्तर भारत में प्रचार करना, ऐसे हम कई सालों से हम विचार करते आ रहे हैं। वो काशी भी हम आए हैं, काशी में आज ऐसे भव्य कार्यक्रम का थोड़ा शुरुआत तो हुआ है। इधर होना चाहिए। इधर जो संस्कृत के जो भी प्राचार्य होते हैं, जो भी शास्त्री आचार्य ये सब होते हैं, उत्तर प्रदेश के संस्कृत बोर्ड में जो सदस्य मतलब जिनका नाम वगैरह होता है, मध्य प्रदेश के संस्कृत के अकादमी जो होगा, बिहार राजस्थान इत्यादि में जो भी संस्कृत सरकार के तरफ से संस्कृत जो विभाग है, ऐसे इसमें जो अध्यापक गण है उनके सामने ये प्रस्तुति करना चाहिए। मुत्तुस्वामी दीक्षितर का जो कृति है वो सुनने के बाद उनके मन में ये परिचय होगा। उसके द्वारा इधर शास्त्रीय संगीत का प्रचार उत्तर भारत में विस्तृत रूप में हो सकता है और भारतीय एकता का भी उपयोगी होगा ये कार्यक्रम। संगीत जो है सबको जोड़ने वाला विषय है, मन में शांति प्रदान करने का सक्षम उपाय है। उसको आज के कार्यक्रम में उन्होंने कामकोटि जो आईआईटी के चेन्नई के अध्यक्ष है, मतलब डायरेक्टर जो है इधर जो अपने पास जो है, उन्होंने इधर तमिल संगमम का आयोजन में वो उनका मुख्य दायित्व रहा। प्रधानमंत्री जी इधर आके काशी तमिल संगमम जो कार्यक्रम हुआ, बीएचयू के साथ आईआईटी चेन्नई लोगों ने साथ मिलकर के काम किया है। अभी उनका भाषण में भी वैसे हिंदी और तमिल का पहले ये कोर्स होता था तमिलनाडु में, समप्रधान विद्वान करके एक संस्कृत भी पढ़ाते थे, वो तमिल भी पढ़ाते थे, वही हमने याद किया। एक साथ होता था संस्कृत और तमिल का। आज ऐसे सुंदर भाषण उन्होंने अच्छा दिया है। इसलिए संगीत का प्रचार भारतवर्ष में एकता के लिए जो सूत्र बन सकता है, ऐसे अपने पास जो भारतीय विज्ञान है, इंडियन साइंस जो होता है, अपना शास्त्रीय संगीत उसको प्रचार प्रसार करके हरिद्वार में, काशी में, मथुरा में, इधर जो तीर्थ स्थान है सभी क्षेत्र पर सायं संध्या सभी पर जैसे गंगा आरती होता है, वो इसमें एक एक कीर्तन अगर होता तो एक एक दिन के लिए एक एक कलाकार के द्वारा एक एक कीर्तन का अगर ये समय और व्यवस्था हो तो ऐसे प्रचार हो जाएगा। आरती के समय पर 10 मिनट या 15 मिनट उसको व्यवस्था होता तो इधर के जो रसिक है वो भी दीक्षितर का कृति का लाभ उनको मिल सकता है, पुण्य मिल सकता है। ऐसे दक्षिण बुद्धि और उत्तर शक्ति दोनों एक साथ होकर के भारत का विकास होने के लिए प्रयास करना। हर हर शंकर, जय जय शंकर। इस कार्यक्रम का अच्छा आयोजन शिव कुमार भारद्वाज जी के द्वारा अच्छा हो रहा है। वहाँ पर त्यागराजन के तरफ से आज का विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है।